टर्मिनोलॉजी उसी के लिए आई है, decoupling from China. Or no. How can we decouple from China? Because China is the largest single trading partner of more than 127 countries. So how can you decouple with China? It will create a lot of problems around the world. तो हुआ कि जी de-risking करेंगे, we will minimize our dependence on China. अब ये तो दुनिया, the world has divided into these lines. A recent study by the IMF staff shows that trade fragmentation alone could cost the world up to almost 7% of the combined GDP in the long term. And long term means 22 to 2036, 2030. Now, economic and financial fractions will further accelerate the pace of de-dollarization. दुनिया में जब ये जंग हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये डिस्कशन किधर चला गया? de-dollarization, reduce your dependence from dollar. These are the new development which is taking place. और मैं आप सबसे स्टूडेंट से भी कहूंगा कि आप लोग भी इसकी तरफ रिसर्च करो, इसके क्या implications होंगे दुनिया के लिए. Low-income countries are heavily in debt, and more countries are adding to the list of debt-distressed countries. Such economic and financial frictions in the midst of rising geopolitical and geo-economic tension will be harmful for the debt relief initiative taken by the G20 countries. ये उनके लिए भी नुकसानदेह है अगर ये आपस में बटे रहेंगे तो. Therefore, my suggestion is inclusion and not exclusion. Cooperation and not confrontation. A solution to minimize fragmentation in global economy for which legitimate dialogue, continuous and meaningful engagement between the two superpowers. अभी ये बड़ा अच्छा initiative था, इजलास हुआ सैन फ्रांसिस्को में, where Joe Biden and the Chinese president met together. ये है, you sit down and have a meaningful dialogue, legitimate dialogue to reduce this tension. Such a conducive and cooperative environment is absolutely necessary for consideration of the debt relief framework that I am going to present in a moment. इस वक्त मैं थोड़ा सा दुनिया की डेट के सिचुएशन को पहले नक्शा खींचूं कि क्यों हमें जरूरत है डेट रिलीफ की. Borrowing from within and outside the country is a normal part of economic activity. It is a normal part of economic activity. Government borrow to finance their expenditure. Why? To invest in the people and infrastructure to build a better future. इसके लिए borrow करते हैं. However, if they borrow too much and too fast, it creates heavy debt burden. This is what is happening today across the developing world. The burden of the debt has increased substantially in developing countries for several reasons. क्या वजूहात हैं? Limited access to financing, rising cost of borrowing, devaluation of their currencies, and poor growth performance. Today, some 3.3 billion people live in countries that spend much more on interest payment than on education, health, and social sector. 3.3 billion लोग जो है उन मुल्क में रहते हैं जहां इंटरेस्ट पेमेंट पे ज्यादा गवर्नमेंट का खर्च है कंपेयर टू उस गवर्नमेंट का एजुकेशन पे, हेल्थ पे और सोशल सेक्टर पे. Global debt has increased more than 4 times over the last 2 decades. 20 साल में 4 गुना कर्ज दुनिया का बढ़ा है. Rising from $22 trillion to $92 trillion. As we speak, दुनिया में जो कर्जा है $92 trillion का है.
लेकिन the global GDP during the same period increased by threefold. So 4 times versus 3 times. In other words, global debt has outpaced the growth of global debt has outpaced the global GDP, therefore, thereby increasing the burden of the debt. Out of the total, out of the total global debt of 92 billion, some 30% is owned by developing countries. 92 बिलियन में 30% जो डेट है ये डेवलपिंग कंट्रीज उसको ओन करते हैं, while 70% is owned by the developed world. उनके यहाँ कोई बातें नहीं करता है डेट रिलीफ की, जो 70% डेट जिनके पास है, बातें हो रही है 30% वालों की, क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो वाले हैं, 70% उनके पास है, but they have the capacity to pay. They earn dollar, they have the capacity to repay. Don't earn that much dollar, and our capacity to repay debt is also declining. इसलिए इश्यू है ये डेवलपिंग कंट्रीज का. यहाँ पर कोई दिखाने का है ये? I just want to show this graph. ये है, बढ़ा है ये 22% ट्रिलियन से 92 ट्रिलियन पे पहुंचा है. ये है, ये येलो है, दिस इज द डेवलपिंग कंट्रीज डेट 30%, एंड जो ब्लू पे है ये डेवलप्ड वर्ल्ड का डेट है. ठीक है, लेकिन विद इन येलो विच इज द डेवलपिंग कंट्रीज डेट 70% is owned by चाइना, इंडिया, मैक्सिको और एक और बोल का अर्जेंटीना. ये है, ये जो है वो विद इन डेवलपिंग कंट्रीज 70% इनके पास में डेट है. मैं जरा लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज के पास आता हूं. What is the situation in the low income developing countries? A large number of developing countries in general and low income countries in particular are either on the brink or already in debt distress at the back of multiple challenges that these countries are confronted with. These challenges include post-COVID-19 recovery, the war in Ukraine, and now in Palestine, deepening climate crisis, and the cost of living crisis. Added to these challenges are the weakening global economic growth, higher interest rates, owing to the persistence of decade-high inflationary environment, banking stress in developed countries due to the persistence of high interest rate, appreciating US dollar, and rising commodity prices. ये हैं issues जिसकी वजह से low income countries are facing difficulties. All these have taken heavy tolls on the debt sustainability of developing countries and hence have pushed them to the brink of debt distress situation. The external debt of developing countries have reached $11.4 trillion in 2022. 11.4 trillion, which has more than doubled as compared to a decade ago. और ये आपको ग्राफ बताएगा कि किस तरीके से ये बढ़ा है डेट डेवलपिंग कंट्रीज का. अगर इसके कंपोजिशन को देखें, the composition of external debt has also changed towards worse and as such enhance the risk of default in developing countries. During 2009 to 2022, the short-term debt rose at an average rate of 9.5% per annum as against 7.8% पहले decade में. A rising external debt
is not an issue for any country as long as they generate enough foreign exchange. जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के का मैंने कहा, through exports to services, through exports to service its debt obligation in an orderly manner. For developing countries, their burden of debt have also continued to deteriorate. कैसे? The share of external public debt to export increased from 71% in 2010 to 112% in 2021, which is the latest number available. तो उनका जो डेट है उनके एक्सपोर्ट्स का भी 121% है आज. In other words, their external debt burden has deteriorated over the times. लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को अगर मैं देखूं, within the developing countries, the external debt situation of the low income countries, जिसका मैंने proposal देना है कि इसको कैसे debt relief provide किया जाए, is even more precarious and therefore is the main focus of my presentation. Around 60% of the world's low income countries, total जो है वो 70 मुल्क हैं, उसमें 60% जो है are either in debt distress or at high risk of it. Therefore, this increases the urgency of debt restructuring or debt relief. ये वजह है इसके, इनको जल्दी से इनके लिए रिलीफ करनी है. These countries would require some $440 billion in additional financing for the period 2022 से 2026 में. इनको $440 billion चाहिए to resume and accelerate their economic activities. So in the absence of a well-coordinated, globally accepted and predictable path towards debt relief, there is a very high probability of the breakout of a cascading debt crisis that could derail the hard-won progress that has been made during the last several decades in these countries. अगर इन मुल्कों के डेट को देखें, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है 1996 लिस्ट वाला जो है वो 1996 के सिचुएशन है, और राइट पे जो आपको दिखा रहे हैं ये है आज का. इसमें आप देखें कि बल्क ऑफ डेट जो है ये बायलैटरल, मल्टीलैटरल एंड प्राइवेट क्रेडिटर्स के हैं. जितनी भी डेट रिलीफ की बातें होती हैं उसमें सिर्फ बायलैटरल की बातें होती हैं, और अगर आप उनका शेयर देखें, दे ऑन एवरेज अकाउंट्स फॉर 21%. पाकिस्तान में भी यही कैफियत है. तो सारी बातें गुफ्तगू 20% के लिए है, 50% इज आउट ऑफ द परव्यू. हाउ कैन यू हैव ए मीनिंगफुल relief for low income developing countries without talking about 80%? तो हमने क्या देखा अब तक में कि अगर लो इनकम कंट्रीज, जिसके लिए रिलीफ की मैं बात कर रहा हूं या करूंगा अभी, उनका बल्क ऑफ जो डेट है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का डेट है. डेट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अदर जो एजेंसीज हैं, उनका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड सो ऑन. बाकी जो है वो बायलैटरल डेट ओनली 21% है, और इतना ही बॉन्ड मार्केट का डेट है. जो हम अफ्रीकी मुल्कों ने बहुत ज्यादा बॉन्ड फ्लोट किया इंटरनेशनल मार्केट पे, उसका जो डेट इकट्ठा हुआ है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है उन बॉन्ड होल्डर्स को डेट रिलीफ, उनको कैसे इसमें डेट रिलीफ में शामिल किया जाए. इट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज द G20 इज करंटली फेसिंग. अब मैं थोड़ा पाकिस्तान के बारे में कर लूं.
पाकिस्तान के डेट सिचुएशन के बारे में, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है। अगर आप देखें कि मैं उस जो मेरा पैकेज है उस पे आने से पहले, पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज हैव बीन ग्रोइंग at a different pace since 2000. They grew at an average rate of 1.4% per annum during 2000 to 2007. जो वो पीरियड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कि अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप से कहेंगे कि दिस इज आवर प्रोग्राम एंड यू शुड सपोर्ट अस। वो ये पीरियड वो था जिसमें हम खुद पॉलिसी बना रहे थे, हमारे अंदर सलाहियत थी। लुक एट पेस ऑफ इंक्रीज 1.4% पर annum। उसके बाद क्या हुआ? The pace accelerated to 6.2% per annum during 2008 to 15, and the pace further accelerated to 8.6% during 2016 to 2023. Speed of accumulation of debt बढ़ता चला गया। पॉलिसीज हम नहीं बनाने लगे, पॉलिसीज किसी के हमने आउटसोर्स किया, जिसका भी बहुत मरतबा जिक्र हुआ, आउटसोर्सिंग पॉलिसीज दूसरों के हवाले करेंगे, ये असर होगा। लेकिन जब आप ड्राइविंग सीट पे होंगे तो ये ग्रोथ 1.4% था। एक ये देखें जरा टेबल, किस तरीके से डेट हमारा बढ़ा है ओवर द ईयर पाकिस्तान में। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड से जहां शुरू हो रहा है, ये ईयर 2000 से है। आप देखें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट है, बल्कि देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन एब्सोल्यूट टर्म। हमारा एब्सोल्यूट टर्म में भी कम होता चला जा रहा था। उसके बाद आप फिर देखें ये आखिरी के 8-10 सालों में किस तरीके से बुर्ज खलीफा बन गया। क्या हुआ है? हमने आउटसोर्स कर दिया। वो जो पीरियड था लेफ्ट में, ये वाला, ये हम खुद बना रहे थे पॉलिसीज, उसका ये इम्पैक्ट है। हम भी जाते थे दुनिया में, बॉन्ड जब फ्लोट करते थे इंटरनेशनल मार्केट में, हमें अगर $1 बिलियन की जरूरत है, 7-8 बिलियन हमें लोग देते थे कि आप ले लें। फिर हम उसको प्राइस को, इंटरेस्ट रेट को कम करते थे, उसी में बार्गेनिंग हो जाती थी। फिर उसमें हम कम से कम रेट ऑफ रिटर्न पे हम बोरो कर लेते थे। तो उस वक्त हमारे पास स्टोरी थी जो दुनिया को बताते थे कि यह है पाकिस्तान। आज नहीं है। हम डरते हैं मार्केट में जाते हुए, कि जो इन्वेस्टर के सवालात होते थे, यकीन करें, मैं 4-5 रोड शो में शामिल रहा हूं, ऐसा लगता था कि आप अपने पीएचडी थीसिस को दोबारा डिफेंड कर रहे हो। ऐसे ऐसे सवालात होते थे उस प्रोफेशनल लोगों के, जहां हम जाके रोड शो में हमसे आके वो सवालात करते थे। आज कौन जवाब देगा? नहीं है कैपेसिटी हमारा अंदर में। तो फॉल्ट लाइज विथ अस। आप देखें, इस टेबल को देखें, आंखें खुल जाएंगी आपकी। 90 की दिहाई को इशरत हुसैन साहब ने कहा, इट वॉज अ लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। हमने $17.4 बिलियन का डेट ऐड किया डिकेड ऑफ 90s में। दूसरा डिकेड है 8 to 18 का, जिसको मैं कहता हूं सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। हमने कोई $49 बिलियन का डेट ऐड किया सेकंड लॉस्ट डिकेड में, 8 से 18। 49 बिलियन ऐड किया। हमेशा नेट टर्म में होता है, कितना हमने बोरो किया, कितना हमने रीपे किया, जो ऐड किया आपने, वो है $49 बिलियन इन 10 years वर्सेस $17.4 बिलियन इन द डिकेड ऑफ द 90s। को ले लें,
पाकिस्तान के 76 साल तारीख में इस 2 डेकेड को ले लें, 90s एंड डेकेड ऑफ 2008 टू 18, $66 billion का कर्ज आउट ऑफ 126 टुडे इज एडेड इन दीज 2 डेकेड। आया कभी किसी ने बताया आपको ये सारी चीजें? मोर देन हाफ ऑफ द डेट आउट ऑफ मोर देन 77.5 डेकेड में, सिर्फ 2 डेकेड में, decade of 90s and decade of 2008 to 18, we earned these debt. More than 53% debt जो है ये इस 2 डेकेड में ऐड हुआ। जब इनके लीडर हजरात टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि जी हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हमने आईएमएफ से जान छुड़ा दिया है, मैं हैरान होता हूं उनपे कि लेकिन हमारी कौम भी है ताली बजा देती है। नहीं, इतनी जाहिर हो गए हैं हम। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कीपिंग योर नेशन इलिटरेट। जो कहोगे तालियां बज जाएंगी उसमें। अपने आप को भी इवेल्युएट करो, यू द यंग पीपल, फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अपने आप को इवेल्युएट करो कि क्या हम सिर्फ ताली बजाने के लिए हैं? आज से पहले किसी ने बताया आपको 80 की दिहाई, 90 की दिहाई और 8 से 18 की दिहाई, सारा कर्ज इसमें इकट्ठा हुआ है। और ये अभी के जो 5 साल हैं, 6 साल, इसमें भी आप देखें कि $29 बिलियन हमने ऐड किया है। ये 2022 से 23 में आपने देखा तो कर्ज कम हो गया एब्सोल्यूट नंबर में। कोई आपके जागा दिमाग में कि ये कम कैसे हो गया? थैंक्स टू द हाई इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। डॉलर अप्रिशिएट हुआ, डॉलर अप्रिशिएट हुआ तो यन भी, यन जो है वो डिप्रिशिएट हो गया। हम जब यन का लोन है उस जब पहले 106 से डिवाइड करके डॉलर में कन्वर्ट करते थे, अब हम 149 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली रेशियो कम छोटा हो गया। ये 5.5 बिलियन डॉलर जो है ये बच गया है। इसको हम एक्सचेंज रेट ट्रांसलेशन इफेक्ट कहते हैं। दुनिया के करेंसीज जो है वो डिप्रिशिएट कर गई डॉलर के मुकाबले में। चूंकि डॉलर के जो डिनोमिनेशन है हम रिपोर्ट करते हैं, वो सारे डेट जो है वो डॉलर में करते हैं। हमारा जो डेट है वो यन में भी है, वो और भी यूरो में भी है और किसी करेंसीज में है। तो जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारी बचत हो गई। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये अमेरिका का इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर रखना, इससे हमें फायदा हुआ है। अगर पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को देखें डेट का, हमारा भी यही कैफियत है। ये भाई किसी ने, हमारे जो सेक्रेटरी थे असद साहब ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दी, तो मैं ईश्वर साहब से कह भी रहा था कि ये नंबर सही नहीं है। ये है हमारा स्ट्रक्चर डेट का। आप देख लें कि बल्क जो है हमारा मल्टीलेटरल एजेंसीज के डेट है। जो हमारा पेरिस क्लब का या बायलैटरल जो डेट है वो बहुत थोड़ा रह गया है। नॉन पेरिस क्लब का डेट ज्यादा है पेरिस क्लब के डेट से, और नॉन पेरिस क्लब में चाइना है, सऊदी अरेबिया है एंड सो ऑन, इनके डेट है हमारे। लेकिन असल जो डेट है वो मल्टीलेटरल है। और इसमें अगर आप बॉन्ड मार्केट के डेट को, जो कमर्शियल बैंकों से हमने लोन लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 55 to 60% पाकिस्तान का जो डेट है ये आइदर मल्टीलेटरल डेट है, जिसमें मैं वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ एंड कमर्शियल बैंकों के जो डेट है इनको अगर शामिल कर दो बॉन्ड मार्केट के, तो ये है हमारा तकरीबन 60% जो है हमारा कर्जा इन मुल्कों का है, इन अदारों का है। अब हाउ कैन यू हैव ए मीनिंगफुल रिलीफ फॉर पाकिस्तान when these debts are not included? बायलैटरल डेट तो हमारा बहुत थोड़ा सा रह गया, क्या रिलीफ मिलेगा? तो अब मैं सीधे सीधे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ये काफी बड़ा, ये मैंने इसको किताबी शक्ल देनी है आगे एक्सपैंड करके, उस लिहाज से मैंने ये थोड़ा सा एफर्ट किया है। इसको बाद में एक्सपैंड करना है, तो मैं अब बिल्कुल उस पैकेज पे आ जाना चाहता हूँ
जिसको मैं कहता हूं एक कॉम्प्रिहेंसिव डेट रिलीफ पैकेज। जो मेन इसका टॉपिक है मेरा प्रेजेंटेशन का, the current debt relief initiative of the G20 was restricted to bilateral creditors only, जिसके कोई 20 से 22% है ऑन एवरेज उनकी डेट है, 80% बाहर है। हमने प्राइवेट क्रेडिटर्स को, जो बॉन्ड मार्केट है या कमर्शियल बैंक है, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक, उनसे कहा कि वॉलंटरली आप भी आ जाएं, इसमें शामिल हो जाए। कौन वॉलंटरली आता है? ये नहीं आएगा। तो ये G20 का जो, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि G20 को किसने कहा ये इनिशिएटिव लेने के लिए? वर्ल्ड बैंक एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर IMF, दोनों ने कहा कि आप ये करें और हमें बिल्कुल ना शामिल करें इसमें, इस डेट रिलीफ में। तो सारा जोर जो है वो डाल दिया उन्होंने बायलैटरल पे, और उसकी इसके पीछे भी इंटरनेशनल सियासत है, इसलिए कि चाइना इज द लार्जेस्ट डोनर टू अफ्रीकन कंट्रीज। चाइना को बार बार प्रेशर किया जा रहा है कि आप शामिल हो इसमें डेट रिलीफ देने के लिए। चाइना कहता है कि भाई तो फिर या आप भी आ जाए, मल्टीलेटरल एजेंसीज भी आ जाए। नो 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 नो, वी आर द प्रेफर्ड क्रेडिटर्स, आप हमारी बात ना करें, आप आए। ये है डिबेट। मैं कहता हूं ये जो मैंने शुरू में जो सेगमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, डी कपलिंग और डी रिस्किंग की जो बात की, वो इसलिए की तो जब आप सियासत को बीच से नहीं हटाएंगे, इन ग्लोबल पॉलिटिक्स को, मीनिंगफुल डेट रिलीफ की जो बातें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आई एम फुल्ली अवेयर। देखिए मैंने डेट ऑफिस को हिट किया, मुझे पता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के डेट जो है ये रीशेड्यूल या इसको डेट रिलीफ में ये शामिल नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नोन एज प्रेफर्ड क्रेडिटर्स। ये हमें पता है, बट दिस इज द फैक्ट फॉर इन ए सिचुएशन। द वर्ल्ड इज नॉट पासिंग थ्रू ए नॉर्मल सिचुएशन, this is an extraordinary situation. Therefore, the normal practice cannot be applied in an extraordinary situation. इसलिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप तीनों को शामिल करना पड़ेगा, फिर एक डेट रिलीफ, मीनिंगफुल डेट रिलीफ पैकेज बन सकता है जब सब शामिल होंगे, जिसमें मल्टीलैटरल भी होंगे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट क्रेडिटर्स भी होगा, और जिसमें ऑफिशियल बायलैटरल्स भी होंगे। सिर्फ ऑफिशियल बायलैटरल को शामिल करने से ये मीनिंगफुल डेट रिलीफ पैकेज नहीं बन सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेट फॉरगिव कर दिया जाए, फला किया जाए, बहुत ये इस किस्म की बातें होती हैं। आई एम नॉट फॉर दैट डेट फॉरगिवनेस। बायलैटरल के लिए मेरा प्रपोजल ये है कि बायलैटरल जो है, जो दे अकाउंट फॉर रफली 20 to 22% ऑफ द डेट, दे शुड सस्पेंड देयर डेट रीपेमेंट फॉर 10 years। 10 साल तक जो है पेमेंट नहीं करेगी डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ये ऑलरेडी G20 ने 77 मुल्कों को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये कौन लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान उसमें शामिल है। तो ये जो भी प्रपोजल है इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो 10 साल के लिए आप सस्पेंड कर दें इनके डेट के रीपेमेंट। इसके अलावा बायलैटरल क्रेडिटर्स में कंसीडर डेट स्वैप अरेंजमेंट। जैसे मैंने जापान का डेट देना है, मैंने इटली का देना है, मैंने फ्रांस का डेट पे करना है, तो आप ऐसा करें कि जी आप उसको हमसे कहें कि जी ये हमारा डेट है, आप इसको एजुकेशन पे खर्च कर दें। डेट फॉर एजुकेशन स्वैप, डेट फॉर SDGs जो है स्पेंडिंग स्वैप, डेट फॉर एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज स्वैप, डेट फॉर पॉवर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्वैप एंड डेट फॉर ग्रीन स्वैप। एक को ले लें, दो को ले लें, सबको ले लें आप।
चीज की स्वैप कर लें, तो बजाय कि वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज आपको पैसा दे, वो पैसा अपने इस प्रोग्राम में करे ताकि लोगों पे लोग उसको उसके असरात पड़े अच्छे। ये कर सकते हैं। क्या हमने माजी में किया? यस, पाकिस्तान ने किया। जब हमारे डेट रीशेड्यूल हुआ, जब 2001 में, तो उस वक्त वी एंटर्ड इनटू डेट स्वैप अरेंजमेंट फॉर कनाडा। कुछ हमने स्वीडन के साथ किए, छोटे छोटे मुल्कों के साथ, यूके के साथ किया। डेट स्वैप अरेंजमेंट हमने इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के साथ मिलकर हमने ये किया था। 400-500 मिलियन डॉलर जो थे, वो इस तरीके से हमारे बजाय उनको पे करने के, वो पैसा उन्होंने एक तरीके से उसका रूपी बनाकर हमने अपने बजट में शामिल किया, और वो पैसा एलोकेट किया, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके कि ये आपका पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, ये पैसा इस पर्पज के लिए खर्च हो। तो ये हमने बाजी में किया हुआ है। ठीक है। Bilateral can enters into debt swap arrangement with debt-ridden low-income countries, selecting one, two, or all of the swap arrangement। इतना हो के मीनिंगफुल पैसा भी उसके अंदर हो, ये ना कि $5 मिलियन का रुपया इक्विवेलेंट करके दे दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इतना पैसे होने चाहिए। तो ये है बायलैटरल का, सस्पेंड डेट पेमेंट फॉर सो मेनी 10 years एंड एंटर इनटू बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। मल्टीलेटरल्स के लिए, मल्टीलेटरल्स मुझे पता है कि ये प्रेफर्ड क्रेडिटर्स हैं, दे आर प्रेफर्ड क्रेडिटर्स, उनके डेट नहीं होते हैं रीशेड्यूल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिस वी आर नॉट पासिंग थ्रू ए नॉर्मल टाइम्स, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है। और ये कि मोर देन वन हाफ ऑफ द लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज डेट्स आर ओड टू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन कमर्शियल बैंक। Let the debt repayment of multilateral institution as well as foreign commercial banks be suspended for 8 to 10 years। अगर वर्ल्ड बैंक का पैसा है, आईएमएफ का लोन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है, इसकी जो डेट की पेमेंट हो रही है 8 से 10 साल के लिए, इसको भी सस्पेंड कर दें। क्या होगा? हमें एक रिलीफ मिलता जाएगा। हम अंडर जो स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस में है, उससे हम निकलने की कोशिश करेंगे। This will give enough breathing space to eligible countries to fix their economies and bring their debt situation at a sustainable level। I am not proposing debt cancellation or debt forgiveness, but only proposing for the suspension of debt payments। इतना इंटरेस्ट पेमेंट मैं नहीं करूंगा, मेरी बचत होगी। और आखिर में प्राइवेट क्रेडिटर्स जो है, ये बॉन्ड मार्केट वाले कमर्शियल बैंक हैं, दे हैव टू आल्सो चिप इन अंडर कंपेरेबिलिटी क्लॉज। ठीक है। और यह है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इनका एक अदारा है जो इनको डील करता है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस कहलाता है, वॉशिंगटन बेस्ड। हम उनको इस्तेमाल करें, आप इन सबों को आप लेकर आए और क्या करें। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट क्रेडिटर्स जो है वो अपना जो बॉन्ड जो पाकिस्तान ने अगर बॉन्ड अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ उन लोगों ने पाकिस्तान के बॉन्ड पे, और पाकिस्तान को $5 बिलियन अगर पे करने हैं, तो हमें माफ कर दिया जाए। नो, मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं, फर्ज कर लें कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया इंटरनेशनल मार्केट में, 5 साल उसका टेन्योर है। तो उसकी जब पैकेजिंग होती है, पेमेंट का शेड्यूल जब बनता है, वो इस तरीके से बनता है कि उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर हमने 5 साल में उसकी अदायगी कर देनी है। उसकी उसकी जो डेट की प्री पेमेंट का शेड्यूल बनता है, उस पर प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, दोनों को कंबाइन करके उसकी एक रीशेड्यूलिंग के लिए हम, सॉरी, उसके डेट की रीपेमेंट के लिए उसकी 5 साल में एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसपे हम अग्री करते हैं। तो मेरा प्रपोजल ये है कि वो जो 5 साल का था, आप उसकी डेट की पेमेंट 10 साल पे लेके चले जाओ, बजाय कि मैं 5 साल में आपको एक $1 बिलियन का डेट जो है वो रीपे करूंगा। मैं उसको
10 साल में करूंगा, 5 के बजाय 10 में। तो क्या हुआ कि माई डेट बर्डन विल रिड्यूस इमीडिएटली बाय 1/2। अगर बाय मल्टीलैटरल्स के साथ ये अरेंजमेंट हो जाए, और इसी तरीके से प्राइवेट क्रेडिट के साथ ये हो जाए, ऑफिशियल बायलैटरल क्रेडिट के साथ अगर हो जाए, तो दिस विल बी ए गुड रिलीफ टू लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान in addressing their debt situation in the respective countries. उसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें वर्ल्ड बैंक को भी शामिल होना होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आईएमएफ को भी शामिल होना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी शामिल होना होगा, और आईआईएफ, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस, ये दे विल डील विथ इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, ये उनको लाएंगे इस एक पेज पे। और इसके लिए ये 3 अदारों को, 4 अदारों को मिलकर ये काम करना है, और ये G20 के फ्रेमवर्क में ये चीजें हो सकती हैं। इसमें आईएमएफ का जो है वन शू फिट फॉर ऑल, ये नहीं चलेगा। इसमें ये वन शू फिट फॉर ऑल पॉलिसी नहीं चलेगी। 40 साल पुराना स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम ये नहीं चलेगा। ये ग्रीक ने भी देखा और पाकिस्तान ने भी देखा कि कितनी तबाही मची है पाकिस्तान में। मैं तो उसमें, मुझे पता था कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक वगैरह के भी लोग होंगे, तो मैं उनको एम्बेरस करने के लिए वो स्टेटिस्टिक्स नहीं लेकर आया। आप बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने 5 साल जो आईएमएफ का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, सितंबर 1 जुलाई 2019 से लेकर और जून 2023 तक, ये तकरीबन 4.5 साल बनते हैं, 4.25 साल। आपको पता है कि सिर्फ 2 पॉलिसी का इम्पैक्ट, सिर्फ 2 पॉलिसी, हाई इंटरेस्ट रेट एंड डिवैल्यूएशन, has costed Pakistan $148 billion, 148 बिलियन पॉलिसीज का इम्पैक्ट। आज भी इंटरेस्ट रेट 22% पे है। 1% इंटरेस्ट रेट जब स्टेट बैंक बढ़ाता है, 1% अरब का, 300 का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। 300 अरब। तो आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर बार बार कहते हैं, जिसके नदीम ने भी कहा, जी आप टैक्स को ब्रॉडन करें, टैक्स को ब्रॉडन करें, मैं टैक्स पर तबाह करने को तैयार हूं, मैं मिस्टर मैडम जो भी है, मैडम एमडी आईएमएफ, खुदा के वास्ते स्टेट बैंक से कहें कि 1% अपना इंटरेस्ट रेट भी कम कर दे, बिलियन मैं बचा लूंगा। आप पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ये कल मैं आपको बताऊंगा। impact, impact of raising interest rate and its impact on inflation in Pakistan. क्या वो बता के हर साल मैं ये एक स्टडी कराता हूँ अपने सर के स्टूडेंट का, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, कि मैं देखना चाहता हूँ कि कोई रिजल्ट बदल तो नहीं रहा। हर साल मैं कराता हूँ, and the result says that 1% increase in discount rate increases inflation by 1.3%. आज हमने 6.5 से 22% पे लेके गए हैं, इन्फ्लेशन रुका हुआ है, वही 35-40 के रेंज में रहता है। क्यों नहीं कम हो रहा है? 5 साल से ज्यादा हो गया है, और कितना टाइम चाहिए? In other words, our inflation is not the traditional inflation। इसलिए मैं कहता हूं कि हम स्पिरिट अप्रोच तो मॉनेटरी पॉलिसी है ये हमारा। आज हम इंटरेस्ट रेट को कम करें, आप यकीन करें कि हमारा 1% अगर कम होगा तो 300 बिलियन मैंने सेव कर लेना है 1 साल के अंदर में।
300 बिलियन का अपने बजट के खसारे को कम कर सकता हूँ, and this will reduce my pace of accumulation of debt. लेकिन आज क्या हो गया है, इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा बढ़ाकर आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखें, इंटरेस्ट पेमेंट एज परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू 60% रेवेन्यू जो हम इकट्ठा करते हैं, टोटल रेवेन्यू, टैक्स नॉन टैक्स सब मिलाकर 60% इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है। और उससे बढ़कर कि जो रेवेन्यू हम इकट्ठा करते हैं उनको एनएफसी अवार्ड में देने के बाद जो पेमेंट का बचता है, जिसको हम फेडरल रिसीट्स कहते हैं, पेमेंट इज मच द एंटायर नेट फेडरल रिसीट्स। अभी तक हम नहीं जागे हैं। क्या इस तरीके से बोल चल सकता है? क्या आपके पास पैसे नहीं है, आप इवन इंटरेस्ट को पे करने के लिए आप बोरो कर रहे हैं? Not to mention your development spending, your defense, your education, your health, your business income support program. These are all borrowed resources. Imagine वो more defense, entire defense budget is on borrowed resources. Is the state of national security? सोचा कभी कि जो हमारा डिफेंस बजट है ये सारा बोरोड है, फिर भी हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं? कोई होश नहीं है हमें। ये सूरत हाल है जो आपको मैंने दिखाया अभी। आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। दिस विल बी माय लास्ट स्लाइड। आप देखें ग्रोथ पिछले 5 सालों में, इंटरेस्ट पेमेंट का इंक्रीज देखें आप। 18-19 में इट ग्रू बाय 39.4%, फिर 25%, ये 5% पे आ गया। क्यों? इसीलिए मैं सोचा कि 5%, हाँ 39% और कहा 5%। ये वो पैंडेमिक का दौर था कि जब हमने 13.25% जो था इंटरेस्ट रेट, उसको कम करके हम 6-7% पे ले आए थे। ये उसका इम्पैक्ट है। आप खुद देखें कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना कम हो गया। और जब फिर बढ़ना शुरू हुआ लास्ट ईयर, इस लास्ट ईयर में देखें, लुक एट द इंटरेस्ट पेमेंट, इसका रेवेन्यू आप बढ़ा सकते हो। आपके 79% रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं आप। इसलिए मैं कहता हूं आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर को, टैक्स की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन की भी बात करें। कर दिस रेवेन्यू कैसे बढ़ा है? इंटरेस्ट पेमेंट 33% पर एनम बढ़ा है ऑन एवरेज 5 सालों में। रेवेन्यू बढ़ा है 14% और नेट फेडरल रिसीट बढ़ा है 16%। 16 से 20 कर लेंगे आप ऑन एवरेज। इंटरेस्ट कहां से जा रहा है? ये आप सब लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि हम किधर जा रहे हैं। सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल बी हैप्पी, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आई विल हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन। यही तो खड़े। Assalamu alaikum, sir. This is Ifat Wafa from BSS, Beacon House School System. ठीक। जी sir. From Beacon House School System, I teach economics to the O-level students. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंट किया and it was really worth listening the whole speech and facts and figures which really opened our eyes as well. First of all, thank you for आपने एक बात स्टार्ट में की और मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके लिए मैं आपसे चाहूंगी कि आपने कहा कि हम जब थे तो पॉलिसी हम बनाते थे और इट वाज गुड इनफ कि हम हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बहुत अच्छे थे उस वक्त। तो क्या हुआ कि ये जमीन बंजर हो गई।
क्या हुआ कि ऐसे पॉलिसी मेकर सब मौजूद हुए? हम कहा था, सर, मैं नहीं कहा। है ना? एक ये बैठे हुए हैं सामने, जी सर, कृष्ण साहब बैठे हुए हैं, why ये not आपको make बताएंगे। number? So that's my question. कि और आप, क्यों नहीं है? जो नदीम ये बार बार ये कहता रहता है ना, इकोनॉमिस्ट पॉलिसी नहीं बनाते हैं। जब इकोनॉमिस्ट को मौका मिला बनाने का पॉलिसीज, तो ये रिजल्ट था। जब आप मौका नहीं देंगे इकोनॉमिस्ट को, जिसके लिए लड़ रहा है ये, फिर ये रिजल्ट होगा। तो कुछ नहीं थी, हम एक वेल नेट थे टीम। और कोई बहुत लंबी टीम नहीं थी, 5 से 6 लोग थे। ऋषभ साहब ऐसा ही है ना, 5 से 6 लोग थे हम मिलकर काम करते थे। और आज, आज एज वी स्पीक, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपस में लड़ रहे हैं। सर अलग फुल अलग मिनिस्टर ने जूनियर मिनिस्टर को कमरे से निकाल दिया। तो जब ये सूरत हाल रहेगी, तो फिर तो नहीं बन सकता है। सर एक जेल होके काम करना पड़ेगा। दिस इज आवर कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही सर, आपको देखकर आप यकीन जानिए दिल से, कहे दिल से ये दुआएं, मतलब बार बार आप जैसे सीनियर लोगों को देखकर ये निकल रही थी कि अल्लाह ताला आपको उम्र हयात, मतलब तवील हयात दे, और इस मुल्क को ऐसे एसेट्स जो है हमारे लिए वो मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर मेरा कहना ये है कि व्हाट इज लीविंग बिहाइंड फॉर द कंट्री, आई वुड, मतलब मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपने जैसे ही और लोग और इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स इस कंट्री में प्रोड्यूस करें, तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इस नहीं, कंट्री इकोनॉमी तो पर, प्रोड्यूस कंट्री करती पर। है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। ये भी सही है। ठीक है, वो जिसकी जिसकी लड़ाई है, नदीम उल हक लड़ रहा है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। एनी अदर? अस्सलाम वालेकुम सर, here डॉक्टर मदीहा here. किधर, जरा हाथ उठा दो भाई, किधर हो, नजर नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा हॉल है ये, माशाल्लाह। सर यहाँ पे ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि हु विल ब्रेक द आइस, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ये इश्यूज हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, ये इश्यूज हैं, ये सॉल्यूशंस है। राइट नाउ ये जो इंटरेस्ट का इशू है, आई थिंक हम सब इवन लेमैन भी जानते हैं। अगर आप घर में भी किसी से डिस्कशन करेंगे वो भी जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज सो हाई, हम ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में भी इश्यूज आ रहे हैं। लाइक आप समझे कि इकोनॉमी बहुत नीचे डाउन हो गई है ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट रेट। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, और कौन इसको, हु विल ब्रेक द आइस, के कौन इसको सजेशंस आती रहेंगी तो कौन इसको कम करेगा और कैसे कम करना है हमने। लाइक द वी हैव, इफ वी हैव अ सॉल्यूशन, हु विल टेक द फर्स्ट स्टेप? सो प्लीज इस पे थोड़ा सा हमें एनलाइटन करते हैं। थैंक ये यू सर। ऐसा आपका सवाल है ना, इसका जवाब अलग से दिया जाता, मजमे में देने में जरा घबराहट है आजकल। तो अगर इसका जवाब आपको चाहिए, तो हम लंच के टाइम पे आपको दे देंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारे जो भी करता धरता है, उनके दिमाग में ये डाल डाल डाले कि उस वो अपने मुल्क के लिए सोचे बस। जिस दिन, जिस दिन हमने अपने मुल्क के लिए सोचा, कि ठीक हो जाएगा। when my national interest becomes supreme to personal interest, things will improve. अब बाकी डिटेल लंच पे आपको मैं बता दूंगा। सर ठीक सर, आई नो दैट के पॉलिटिकल इश्यूज है, बहुत से इश्यूज हैं सर यहाँ थैंक पे यू सो मच अच्छा, ठीक ठीक। sir. Just two comments or questions. The first one is how you will resolve the credibility issue, because what you are proposing is that हम debt जो है वो 10 साल के लिए डिले कर दें, हाँ तो डेफिनेटली मल्टीलेटरल के इश्यूज में तो क्रेडिबिलिटी शायद इशू ना हो उतना, लेकिन बायलैटरल और प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी इशू होगा। बिकॉज द इशू इज कि हम कह रहे हैं कि पॉलिसी हम नहीं बना रहे, लेकिन जब हम उनसे रीनिगोशिएट करेंगे तो पॉलिसी भी वो डायरेक्ट करेंगे। द सेकेंड थिंग इज दैट के व्हाट्स द कैच, जो हमारे पास डोनर है वो ये फ्रेमवर्क क्यों अडॉप्ट करेगा? नहीं, देखें, कर तो रहे हैं वो, किया भी है। उन्होंने डेट रिलीफ प्रोवाइड भी किया। पाकिस्तान हैज आल्सो बीन द बेनिफिशियरी। ये पैंडेमिक के बाद उन्होंने डेट रिलीफ प्रोवाइड किया, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं था। यानी कि आप सोचे कि 77 मुल्कों में से 44 ने अप्लाई किया, और टोटल जो उनको रिलीफ मिला $5.7 बिलियन का, कुछ नहीं था।
क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे, ये सारे डिटेल मेरी प्रेजेंटेशन में, उसमें ऐसे ऐसे कंडीशन लगा दिए थे कि आपने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है। वो बहुत सारे मुल्क जो नहीं जाना चाहते हैं, हम तो बड़े शौक से चले जाते हैं ना, वो ना भी बुलाए तो हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मुल्क नहीं चाहते हैं, उनको पता है कि कितनी मार पड़ती है, ठीक है। तो वो, जाहिर सी बात है, इसका एक प्री कंडीशन ये था कि यू हैव टू बी इन द आईएमएफ प्रोग्राम। तो बहुत सारे लोग जो नहीं जाना चाहते थे वो नहीं गए, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। दूसरी इसमें ये था कि जब आप ये रिलीफ लेंगे तो यू कैन नॉट गो टू द बॉन्ड मार्केट, तो यू विल टोटली बी डिपेंडेंट ऑन दी आईएफआईस के लोन पे आप जिंदा रहेंगे। तो ये भी एक उसमें इश्यूज था जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ, मैंने टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका, तो है इसमें। अच्छा, आपने कहा था कि क्रेडिबिलिटी की बात, जैसे मैंने कहा कि वन शू विल नेवर फिट फॉर ऑल। फर्ज कर ले कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया है इसके लिए, इस डेट रिलीफ के लिए ये अप्रूवल हो गई है, तो ये इट शुड नॉट बी ए फ्री लंच फॉर पाकिस्तान, ठीक है। हम बैठे आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ में, आईएफएफ के साथ में, और हुकूमत पाकिस्तान बैठे, बट जो रन द मिल, जो हमारे, जिसको नदीम कहता है डीएमजी ग्रुप, कुछ उसको कहते हैं, माजरत इशरत साहब से, एक हमारे थे डॉक्टर अकरम शेख साहब, वो हमेशा कहते थे ये पहलवान है। पहलवानों से ये काम नहीं चलेगा। आप हुकूमत पाकिस्तान प्रोफेशनल को इसमें शामिल करें निगोशिएशन में, ऑन देयर ओन बिहाफ, नॉट द एडिशनल सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी, एक्सपर्ट को शामिल करें। पाकिस्तान में है अच्छे अच्छे लोग हैं, वो उनके साथ बैठे कि जी ये हमारा प्रोग्राम है, आपके जो डेट रिलीफ मुझे आप प्रोवाइड करेंगे, तो हमने इसको इस तरीके से अपना प्लान बनाना। आपका दिया हुआ प्लान नहीं होगा, तो आपके दिया हुआ प्लान जो है वही है, रन ऑफ द मिल डिकेड, 40 साल पुराना स्टेबलाइजेशन, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करो और डेट में डूब जाओ और फिर हमारे पास दोबारा आओ, तो ये नहीं चलेगा। तो इसका इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है उनके लिए एक्सेप्ट करना। अगर ये होता तो ये पूरा का पूरा पैकेज जो है, जो यहाँ मैंने बयान किया, ये डीबीआई भी उसको G7 के सामने ये प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन उन्होंने ये वाला पार्ट निकाल दिया, सिर्फ बायलैटरल का रखा था उन्होंने, बस।